प्रेज द लॉर्ड, शालोम। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज का दिन दिखाने के लिए। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का संदेश जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज का संदेश प्रभु यीशु मसीह के उस आज्ञा के अनुसार है जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि यदि कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दे। तो क्या दूसरा गाल फेरना जरूरी है? क्या दूसरा गाल फेरना जरूरी है? इस बात पर गौर करने की जरूरत है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है प्रभु यीशु मसीह की। अगर प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि अगर तेरे दाएं गाल पर कोई थप्पड़ मार दे तो दूसरा उसकी ओर फेर दे, यानी कि उनसे बोलो यहां भी मार दे। इससे कितना फर्क पड़ता है, इससे क्या बात सामने आती है, किसका हृदय परिवर्तित होता है, ये देखने वाली चीज है। एक छोटा सा वीडियो क्लिप है मेरे पास जो बहुत वायरल हो रहा है आजकल मसीहों में, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और उसमें देखिएगा कि एक लड़का है, बस में बैठा है और एक बुजुर्ग है जो प्रचार कर रहे हैं। तो वो लड़का थोड़ा इरिटेट हो जाता है क्योंकि वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा है और उसके दादी दादा गुजर चुके हैं, बहुत परेशानी में है वो, लेकिन वो प्रचार कर रहे हैं वहाँ पर। तो वो उनकी आवाज़ उसको क्या कर रही है, इरिटेट कर रही है। वो उठकर उनके साथ थोड़ी सी बदतमीजी करता है और थप्पड़ भी मारता है उनको। तो पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। Make sure Jesus Christ is in your life, because Jesus Christ. Dude, shut up, man! I'm on the phone, dude. I don't want to hear this. For real. It's okay. For real, man. What the heck is wrong with you, dude? It's okay. I'm sorry. This person man. Make sure God is in your life. Take care of everybody. Have God in your life. If you don't have God in your life, look for God. He's here for you with open arms. He doesn't judge. Dude, shut up. Nobody believes. Don't bring your religion, your thoughts right here. I'm on an important call. It's okay. You get on your call. Don't touch me. Don't touch me. God bless you. Do not touch me. Jesus Christ is in your life. I don't believe. The power of Jesus Christ. I don't care. Whatever. I don't believe. I don't believe. God loves all His children. Shut up. You are blessed. You are loved by God. Shut up. You are loved by God. Shut up. Shut up. Shut up. I say shut up. Come on, man. Come on. God loves you. You blessed me here on this cheek. Bless me on this cheek. Bless me right here. Bless me right here. Oh my. Pain is okay. I take the pain for you. I take the pain for you. You. It's okay with it. I am here. We don't need your. God We don't need it. all We blessings to you. don't. You just. Bless me here, please. Oh, Bless me right here. that's not. Bless me here. No. Don't do it. Don't. An eye for an eye, a tooth for a tooth. What? So I want you to bless me here. No. No. And here, come here. Bless me right No, here. this is Just right here. crazy. Bless me. Just bless me. I don't believe. Well, God believes in you. God believes in you. God believes in you. God knows that you're a good man. I don't know what happened in your life, that you don't have God in your life, but you need to put God back in your life. I've been put here for a reason, and it's for you. My grandfather, the one that raised me, just passed away. I thank God to keep my grandparents here. But you know but what? no, he's not here. No. He never answered, man. He did answer. I'm going through so much shit in my life. You know why he's not here? Because his time on earth is done. He's been a blessing here. It's time God needs him. God needs him to do his work up in heaven. But you know he loves me. Take your glass, go flip it. Your grandparents are with God. Your grandparents did their work here on earth. They gave you everything. They gave you memories. They gave you morals and values, right? So we take that with us. Look, we're all on borrowed time. Nobody. I get emotional when I think about this, but we're all on borrowed time. It's like, what are we going to do with that time? What are we going to do? I lost a loved one too. We all lose people. That's what life's about. We have to move on. We move on and we carry their memory about them. We talk about them forever. Like, God is. Your sins are casted away, all right? We all make sins, okay? But you're forgiven. And God is with you. It's okay. It's okay. That's from love, from your heart, because you're passionate for your
grandparents. That's why, right? Sorry. Don't be sorry. Sorry, guys. Bring God into your life. Can we do that? Guys, can we come over here and pray over here, please? Come over here. Come over here, guys. Listen, don't be sorry, right? God is in your life, yeah? May God bless. What's your name, sir? What's your name? Josh. May God bless Josh and keep him in his spirits and prayers and keep him healthy. तो इस वीडियो में हमने क्या देखा दोस्तों कि हमने देखा कि एक जो परमेश्वर का जन होता है उसका एक ही काम है कि लोगों का जीवन परिवर्तित हो। यहाँ पर एक व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। दूसरी तरफ एक लड़का है और भी बहुत सारे लोग हैं जो वो भी बोलते हैं कुछ, लेकिन बात सिर्फ उस लड़के की और उस बुजुर्ग की हम करेंगे, वो प्रभु के दास की हम करेंगे जो वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। और क्या होता है कि वो लड़का इरिटेट हो जाता है, उठ के उनको थप्पड़ मारता है, खींच के थप्पड़ मारता है गाल पे, और जो प्रभु का दास है वो कहते हैं बेटा यहाँ भी मार दे, दूसरे गाल पे भी मार दे। वो क्या कर रहे हैं? वो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। दोस्तों, जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं, जब हम वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वचन के अनुसार अपने को हम प्रस्तुत करते हैं, तब किसी का जीवन जरूर बदलता है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो परमेश्वर से भी नाराज है, लोगों से भी नाराज है, और वो ये जानता है कि मैंने प्रार्थना की थी लेकिन मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई। तब क्या हुआ? उस व्यक्ति ने, उस पास्टर जी ने, जो बुजुर्ग हैं वो वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने उसको प्यार से समझाया और उससे सारी बात बताई कि परमेश्वर को आपके जो लोग हैं, जो प्रिय हैं, परमेश्वर को उनकी ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने उनको बुला लिया। तो इसमें कोई निराश होने की बात नहीं है, और बहुत अच्छी तरह से उनको समझाया, फिर उसके लिए प्रार्थना भी की। दोस्तों, ये वीडियो हमें बहुत बड़ी शिक्षा देकर जाती है, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है पास्टर लोग क्रोधित हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, और ये गुस्सा ही हमारे नाश का कारण बन जाता है। 3 चीज़ें हैं जो हमें बर्बाद कर देती हैं, हमारा गुस्सा, जिद और अहंकार। ये तीनों चीज़ें हमें बर्बाद कर देती हैं। तो हमें क्या करना है? इन पास्टर जी की तरह अपने जीवन को व्यतीत करना। अगर हम प्रभु की सेवकाई में हैं, अगर हम एवेंजलिस्ट हैं, अगर हम पास्टर हैं, रेवरेंड हैं और बाइबल टीचर हैं और सिखा रहे हैं लोगों को, समझा रहे हैं लोगों को, और चाहते हैं कि लोगों का जीवन बदले, तो हमें इन पास्टर जी की तरह अपने आप को बनाने की ज़रूरत है। आज का शीर्षक है वो है दूसरे गाल पर थप्पड़ मारना क्या खाना ज़रूरी है। अगर हमने दाएं हाथ गाल पर किसी ने खींचकर मार दिया है तो क्या हम उससे कहें कि यहाँ भी मार दे? बहुत से लोग गुस्सा हो जाते हैं कि हमें मारा जा रहा है, हमें पीटा जा रहा है, लेकिन ये तो बाइबल बताती है कि लोग, यीशु मसीह ने कहा, लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे। लूका रचित सुसमाचार जब 21 अध्याय के 17 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट रीति से कहा है। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 17 पद, लूक चैप्टर 21 वर्स 17 लिखा है, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। तो ये तो लाजिमी है, ये जरूरी है, ये होगा, लेकिन करना क्या है? हमको संयम बरतना है, धैर्य रखना है और सामर्थ्य बने रहना है, और अपने आप को क्या करना है? अय्यूब के समान बनाना है, जिसमें लिखा है अय्यूब की पुस्तक में, अय्यूब 34 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है, अय्यूब के तुल्य कौन शूरवीर है जो ईश्वर की निंदा को पानी के समान पी जाता है। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है हमें इन पास्टर जी के समान बनना। तो ये जो वीडियो क्लिप है हमें बहुत बड़ी शिक्षा देकर जाता है, खास तौर से पास्टर लोगों को, और आप लोगों के लिए भी। हम जो एवेंजलिस्ट नहीं हैं, जो पास्टर नहीं हैं, जो कांग्रीगेशन में रहते हैं, जो प्रभु के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं और प्रभु में हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी शिक्षा है कि हम कैसे किसी के जीवन को बदल सकते हैं। मान लीजिए, इसको अगर हम दूसरी तरह से देखें, वो व्यक्ति है, जो लड़का है, वो फ़ोन पे बात कर रहा है, पास्टर जी वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, और उसको गुस्सा आ जाता है, वो थप्पड़ मार देता है पास्टर जी को। तभी क्या होता है? पास्टर जी को भी गुस्सा आता है कि तुमने मेरे पर हाथ क्यों उठाया, मैं तुझे कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, और उसके गिरेबान पकड़ के उसको 1-2 घुसे मार देता है। फिर वहाँ पर लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो जाता, और फिर क्या हो जाता है? वो
उस लड़के का जीवन नहीं बदलता। हमने देखा है फिर उस लड़के ने सॉरी बोला उनको और फिर उनको गाल पर किस भी किया, गले लगाया, उनको हक किया और उनको गाल पे किस भी किया। तो इस तरह से हम जीवनों को बदल सकते हैं लोगों के, बहुत ज़रूरी है ये। तो एक वचन हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 37 और 38 पद, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 37-38। परंतु तुम्हारी बात हाँ कि हाँ या नहीं कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई ही से होता है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। और 39 पद में लिखा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। और उन्होंने ऐसे ही किया, जो हमने वीडियो देखा है उसमें पास्टर जी ने, जो बुजुर्ग है, उन्होंने कहा कि बेटा मेरे यहां भी मार दे, अपना दूसरा गाल उसकी ओर फेर दिया। तो ये होती है मसीहत, ये होता है एक ऐसा काम जिससे हम सामने वाले के जीवन को बदल सकते हैं। ये यीशु मसीह का वचन है। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरे दाहिने गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके ओर फेर दे, मतलब बायां गाल भी उसके ओर फेर दे कि भाई मार ले, अगर तेरे को इससे संतुष्टि मिलती है तो मार ले, अगर संतुष्टि मिलती है तो तेरा कुछ भला हो जाता है तो मार ले। क्योंकि अगर हम विरोध करेंगे, अगर हम क्रोधित हो जाएंगे, अगर हम मुंह से गालियां देना शुरू कर देंगे, हम श्राप देना शुरू कर देंगे, कुछ बोलना शुरू कर देंगे, तो वहां पर हम शैतान को विजयी बना देंगे। शैतान विजय बन जाएगा और वो ताली बजाकर यीशु मसीह से कहेगा, देख मैंने तेरे बेटे को भटका दिया, अब वो मेरी तरफ है। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, जैसे इन पास्टर जी ने किया है, हम प्रभु यीशु मसीह के सर को ऊंचा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह शैतान से कहते हैं, देखा मेरे बेटे को, जैसे कि परमेश्वर ने शैतान से कहा था अय्यूब के बारे में कि क्या तूने देखा है पृथ्वी पर एक व्यक्ति है जो मेरे नाम का भय मानता है, सीधा है, खरा है और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य है। अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने ऐसे कहा था। तो ऐसे हमारे बारे में भी कहेगा प्रभु, और उन पास्टर जी के बारे में भी बोला होगा परमेश्वर ने, जो उस बस में प्रचार कर रहे हैं और जिन्होंने मार खाने के बाद भी उस लड़के को बचा लिया, उसके लिए प्रार्थना की और उससे सॉरी बुलवाया और उसने हक करके पास्टर जी को किस भी किया। संत पौलुस इस विषय में क्या कहते हैं, आइए देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 24, 25 और 26 पद लिखा है, और प्रभु के दास को झगड़ालू होना नहीं चाहिए। आजकल हम देखते हैं छोटी छोटी बात पे पास्टर लोग गुस्सा हो जाते हैं और फिर वीडियो बनाकर क्या करते हैं, जिसके ऊपर गुस्सा है अपना गुस्सा दिखाते हैं वहां पर कि इन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया, इन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया। बाइबल कहती है कि दुख क्यों नहीं उठाते। यहां पर लिखा प्रभु के दास को झगड़ालू होना नहीं चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। जिस व्यक्ति का मैंने वीडियो दिखाया वो कैसे सहनशील है, सबके साथ लिखा है, सबके साथ कोमल स्वभाव। कोमल स्वभाव इसी से प्रदर्शित होता है कि अगर आपके गाल पर थप्पड़ मार दे, दूसरे भाई यहां भी मार दे, तेरे को फायदा मिल रहा है, तेरे को कुछ खुशी मिल रही है तो मार दे। और आगे लिखा है कि और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। सहनशील मतलब बर्दाश्त करने वाले। 25 पद में लिखा, और विरोधियों को नम्रता से समझाए, जैसे उन्होंने समझाया, नम्रता से समझा दिया, बहुत अच्छी तरह से समझा दिया उनको। आप देखिएगा, दोबारा देखिएगा वीडियो को, आपने देखा भी होगा कि किस नम्रता से उसको समझा दिया उन्होंने। और लिखा, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। और वो ऐसा ही हुआ, उसका मन फिरा और उसने क्या किया, उनको हक किया, उनको किस किया, सॉरी बोला। ऐसे हम लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। अगर हम कर्कश रहेंगे, क्रोध में भरे रहेंगे और अपने आप को ज्यादा ही कुछ समझेंगे तो हम किसी का जीवन नहीं बदल सकते। हमें नम्र और दीन बन के अपने जीवन को व्यतीत करने की जरूरत है। और 26 पद में लिखा है, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। किसके द्वारा? हमारे नम्र स्वभाव के द्वारा। यहाँ पर अगर हम 24 पद में पढ़ते हैं, लिखा है प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए।
उसे झगड़ालू होने की जरूरत नहीं, उसे तो नम्र और दीन बनना चाहिए, उसे तो प्रभु यीशु मसीह के समान बनना चाहिए। यीशु मसीह जब क्रूस पर लटके हुए थे तो लोगों ने उनके थप्पड़ मारे, लोगों ने उनके कपड़े छीन लिए, लोगों ने उनको मुंह पर थूका और गालियां दी, अपशब्द कहे और कहा कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो, अगर तू भविष्यवक्ता है तो बता तुझे किसने मारा है। यीशु मसीह तो ऐसे लटके में हैं, हाथों में कीलें ठुकी हुई हैं और वो कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा जीवन प्रभु चाहता है। प्रभु चाहता है हमारा जीवन बाइबल के अनुसार हो। जो वीडियो मैंने दिखाया है उसमें जो पास्टर हैं सेम वही चीज़ दिखा रहे हैं। वो मार खा गए लेकिन फिर भी उन्होंने उस लड़के को नहीं छोड़ा, उससे बातचीत की और उसे अपने फेवर में ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यही है दोस्तों कि हम अगर ऐसी परिस्थिति हमारे साथ आती है तो हम इस बात से एक सबक सीखें कि अगर कोई हमें मारता है, पीटता है तो ये परमेश्वर को भाता है, क्योंकि पहला पत्रस 2:20 में लिखा है कि यदि हमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या भलाई की बात है। और आगे यदि भला काम करके दुख उठाते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है, ये परमेश्वर को भाता है। तो हमें ऐसे काम करने हैं जो परमेश्वर को भाए और दूसरे के जीवन को बदलने में कामयाब हो जाए, जैसा कि पास्टर जी ने किया। तो अगर आप पास्टर हैं और आपके जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं अगर, तो आपको सचेत होकर उन लोगों के जीवन को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं और प्रभु की संगति में बने रहते हैं और नम्र और दीन बन के अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तब परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा हमारे सामने लगाता है। साउथ के एक पास्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने जब हम बाइबल कॉलेज कर रहे थे तब उन्होंने एक गवाही बताई थी कि वो एक गांव में गए, वहाँ पर प्रचार कर रहे थे और साइकिल पर थे वो, तो वहाँ पर प्रचार कर रहे थे तो गांव के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा ये यहाँ पर ईसाई बनाने आया, और उन्होंने डंडे लेकर उनके पीछे भागे और वो साइकिल लेकर भागे बड़ी तेज। अब जब साइकिल पे चल रहे थे तो इतने में क्या है, पुल आ गया। अब पुल पे इतनी तेज साइकिल नहीं चलाई जा सकती, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर अपने आप को छोड़ दिया, साइकिल वहीं छोड़ी और जो बाउंड्री थी पुल की उसके ऊपर ऐसे करके बैठ गए और प्रार्थना करने शुरू कर दी। और बड़ा शोर हो रहा था, पूरा गांव डंडे लाठी लेकर उनके पास को आ रहा था। लेकिन थोड़ी देर में शांति हो गई, थोड़ी देर में शांति हो गई। और क्या हुआ, उन्होंने जब आँख खोल के देखा तो पूरा गाँव घुटने के बल बैठा है और आंखें बंद करके ऐसे करके बैठे हैं सब। उन्होंने पूछा क्या हुआ, आप लोगों तो मेरे को मारने आए थे। कहेंगे नहीं, आप बहुत बड़ी हस्ती हैं, क्योंकि हम सब ने देखा है कि जब आप यहाँ बैठे थे तो आपके चारों तरफ स्वर्गदूत थे, स्वर्गदूत। ये सच्ची बातें हैं। जब हम सच्चाई से, खराई से, ईमानदारी से, नम्रता से, दीनता से, सहनशीलता से परमेश्वर के काम को करते हैं तो परमेश्वर की स्वर्गदूतों की छावनी हमारे चारों तरफ होती है। परमेश्वर हमें विरोधियों से बचाता है और उनके मन को भी परिवर्तित कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। यदि आप गिटार सीखना चाहते हैं तो मेरे बेटे का चैनल है मैसी विद गिटार्स, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे क्लिक कीजिए और घर बैठे फ्री में गिटार सीखिए। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाकर क्लिक कर लेना है ताकि हर एक नया वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेस करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए, आपको उसी समय पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू प्रश्न में आज का सवाल है कि प्रकाशित वाक्य किसका है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए
कि हमें सहनशीलता के साथ नम्र और दीन बन के अपने जीवन को व्यतीत करना है, ताकि लोगों के जीवन परिवर्तित हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।